So we are live. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. So یہ سیشن جو ہے یہ ملٹیپل زبانوں میں ڈب ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ. انٹینشن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا پرسپیکٹیو کور کریں اور پھر جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں اپنا پرسپیکٹیو کور کروں گا اوور دی ایئرس. 20+ ایئرس میں نے انڈسٹری میں کیا سیکھا کیا کیا, اور تم اپنا پرسپیکٹیو کور کرو گے شامیر ایز اے فری لانسر. ٹھیک ہے, تم نے کیا کیا اور کیا کرتے آ رہے ہو ماشاء اللہ, رائٹ. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ I will do the closing remarks, but I know you have to go somewhere, so تم انشاءاللہ بالکل جا سکتے ہو. ٹھیک ہے, سو بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ. جی ہاں, کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا کیا کیا اور کیا کرتے آ رہے ہو. ذرا پہلے تو اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا ہے, تم کیا کر رہے ہو. بالکل فیصل بھائی, السلام علیکم سب کو میری طرف سے. میں نے اپنی جو کریئر ہے, ایجوکیشن ہے, وہ سٹارٹ کی تھی ایک انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ سے, اور اس کے بیچ میں ہی مجھے یہ ایتھیکل ہیکنگ اور جو ہے انفارمیشن سیکیورٹی کا ایک سیمینار میں نے اٹینڈ کیا. وہاں سے میرا جو شوق ہے وہ اس کے بارے میں بڑھ گیا کہ یار یہ بھی اچھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو پڑھتے سیکھتے میں نے پھر یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار اچھا, اس میں انفارمیشن سیکیورٹی میں ایک اور بھی کیٹیگری ہے جو ایک الگ ہی لیگ ہے جو بگ باؤنٹی ہنٹرز کی کہلاتی. تو اس پرٹیکولر ایسپیکٹ کو میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا, اور کرتے میں بہت جلد ہوا یہ کہ مجھے پتہ چلنا شروع ہوا کہ بھئی کس طرح سے بگ باؤنٹی پروگرامز کام کرتے ہیں, کس طرح سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد بس یہ ہے کہ میری رینکنگ ہو گئی اس میں بیسڈ آن مائی ریسرچ, اینڈ کوئی 400 کمپنیز کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں اب تک, اور ریکگنیشنز میرے پاس ہیں. تو then I started my own company in the field of cyber security and worked my way through there. اس کے علاوہ میں نے ملٹیپل پروجیکٹس پہ کنسلٹنسی بھی کی ہے, کام بھی کیا, بٹ اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام دا فیکٹ کہ وہ جو ایک کیوریوسٹی تھی کہ یار ایک چیز کیا ہوتی ہے, اور وہاں سے آج یہاں پہ الحمدللہ. دو تین لوگ بھی. پروسیس کو کتنا ٹائم لگا, how long did it took, like کتنا ٹائم لگا اس پورے پروسیس کو, اس پورے پروسیس کو, لرننگ کے پروسیس کو؟ ہاں, جب تم نے جرنی اسٹارٹ کی ہے where you are sitting right now. دیکھیں, اب آج میں کلیکٹیو میں ایکسپیرینس بتاؤں تو ابھی میں نے جب سے پہلی دفعہ اس ورڈ کا نام مطلب ایتھیکل ہیکنگ سائبر سیکیورٹی کا ورڈ سنا تھا, اس سے لے کے اب تک مجھے 7 سال ہونے والے. So 7 years تمہیں لگے. یس. اور جو ایتھیکل ہیکنگ ہے جو ایز اے فری لانسنگ, کیونکہ ہر کوئی گگ اکانومی کے اوپر بات کرتا ہے کہ فری لانسنگ رائٹ. فری لانسنگ از اے پریٹی بگ اکانومی ان دی اسٹیٹس اٹسیلف. جو اکانومی اس کا سائز جو ہے گوز ان بلینز آف ڈالرس. سو جو تم نے جب کام شروع کیا, and I know many researchers I've seen and I've met many researchers in different conferences and different places. مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے اس پہ کام شروع کیا تھا تو فری لانسنگ سے کیا انسان اپنا پورا ایک سوشلی اینڈ اکنامکلی اپنا آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ از اٹ لائک اے وائبل آپشن؟ دیکھیں, جب سٹارٹ کرتا ہے انسان فیصل بھائی شروع میں, تو obviously اس کو یہی لگتا ہے کہ یار اچھا پیسہ آ رہا ہے, کوئی مطلب کسی طرح کی روک تھام وغیرہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو کوئی مطلب there is no harm in he doesn't see any harm in that. تو اس وجہ سے پہلے تو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے بھی صحیح. I'm not saying کہ there's something
that's off the hook. It's good. But after a moment in time, when you do it again and again for years, वो आपका स्किल सेट तो इम्प्रूव हो रहा होता है, बट the adventure loses. अभी भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अभी मैं मतलब अभी भी I still do bug hunting a lot. लेकिन the thing is कि still I but मेरी frequency उसकी कम हो गई है. First I used to do it every day. Now I do it on weekends. अब उसमें मतलब स्किल सेट इम्प्रूव हो गया है, पता है कि आज कहाँ फाइंडिंग है, क्या है चीजें. तो बड़ा तुमने एक इट्स अ बड़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिया तुमने कि इंसान जब इनिशियली स्टार्ट करता है तो उसको लगता है कि भाई बहुत सारे काम मैं जल्दी कर सकता हूँ एंड आई कैन दिस इज द फॉर मी दिस इज एवरीथिंग राइट. बट ओवर द इयर्स जो तुमने जवाब दिया ना कि ओवर द इयर्स उसके एडवेंचरिज्म का स्पार्क डिमिनिश होते चला जाता है. दैट्स तो जो तुम्हारे चेहरे पे जो वो थे ना, क्या नाम है, जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस थे, दे वर वेरी वेरी रियल यार. मतलब कि अ पर्सन डज गेट टायर्ड, वो इंसान थक जाता है बिकॉज होता ही है कि बाज़ औक़ात इंसान के तबीयत में ना उतार चढ़ाव होता है. राइट, सही है, ठीक है. तो बाज़ औक़ात इंसान जब मैं कुरान पढ़ता हूँ, जब मैं अपनी चीजें पढ़ता हूँ, जब मैं बैठ के लैब्स बना रहा हूँ, तो आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, तो सब कुछ कर रहा होता हूँ, आई फील वेरी इंथुजियास्टिक. ठीक है, लेकिन एट टाइम्स when I go away and I'm sitting somewhere, ठीक है, with my kids or with my family, with my parents, तो मैं realize करता हूँ कि यार मतलब कि ना I need a break and I need to do something else, right? So मैं अपने आप को अलग जगह occupy करता हूँ. That is the reality. That is the reality. तुमने गनीमा क्यों ज्वाइन किया? What was the reason for joining गनीमा? गनीमा एक बेसिकली इसकी दो रीजन है. Ghanima at its core is designed to help people learn, and not learn just technical skills, but skills that can make them successful, or that can pave a path to make them successful in a particular career. अब कंफ्यूजन लोगों को ये है कि यार करियर और फ्रीलांसिंग में फर्क है, लेकिन फ्रीलांसिंग एक तरह से करियर ही है. ठीक है, आप मल्टीपल गिग्स पे काम कर रहे होते हैं. तो गनीमा ज्वाइन करने का आप लोगों के साथ ये वजह था कि यार इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया जाए, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें मतलब इसका लोगों को पता होना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, हम और आप मिलके, वो ये है कि it's at the end of the day to help people learn and position themselves better in the industry. तो मेरी पर्सनल रीजन ये थी ज्वाइन करने की. सही, जज़ाकल्लाह खैर. सो ये एक फ्रीलांसिंग पर्सपेक्टिव मैंने तुमसे पूछा था, ठीक है. इसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैं रूम भी खोलूंगा ताकि लोग आ जाएं, लेकिन वो पार्ट जो है वो मल्टीपल ज़बानों में डब नहीं होगा. लेकिन बिकॉज Q&A सेशन में फिर मैं लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं उनको जवाब दे सकता हूँ. द आइडिया इज के जो हमारी इंटेंशन थी ना, ओवर द इयर्स मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था बैक इन 2001, आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग कि यार मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करूं. और मुझे पता भी नहीं था 2000 में जब मुझे बताया था, तो मैं उस जमाने में एक साहब थे जो अमेरिका से आए थे और वो हिल्टन फार्मास्यूटिकल में काम करते थे. राइट, खिजर हयात उनका नाम था. अब गालिबन उनका इंतकाल भी हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है. एंड ही मेट मी एट द मॉस्क एंड फजर सलाह, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये इस तरह से करो, ये इस तरह से करो. और क्योंकि उनकी मेरे अब्बू की ना सलाम दुआ थी मेरे वाले साहब के साथ, ठीक है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई स्टार्टेड स्टडीइंग, आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर द इयर्स. जिस जमाने में किसी को पता भी नहीं था उस जमाने में, लेकिन
पर्सपेक्टिव ये था कि मैंने इंडस्ट्री में काम किया, तुमने स्टार्ट ही किया एज अ फ्रीलांसर, राइट, और मैंने स्टार्ट ही किया इंडस्ट्री के अंदर. तो ओवर द इयर्स जब मैंने इंडस्ट्री में लोगों को देखा तो मैंने देखा कि भाई लोग जब अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन हो और तुम उसमें जाओ पीछे शामिल, तो ओवर द इयर्स जो तुमने 6-7 साल 8 साल हो गए, तुमने मिस्टेक्स कमिट की होगी, टाइम जाया हुआ होगा तुम्हारा. तो अगर तुम्हारे पास कोई टाइम कैप्सूल हो जिसमें तुम बैठ के जाओ वापस, ठीक है, या स्टार गेट हो जिसमें तुम वापस पीछे जाओ, क्या एडवाइस दोगे तुम अपने उस पुराने आदमी को कि यार ये मिस्टेक्स मत करना, और ना अदरवाइज तुम्हें बहुत टाइम सेव हो जाएगा तुम्हारा. Because I've seen people committing those mistakes. ठीक है. तो आई वुड, देखें फैसल भाई, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं लोगों को बताऊंगा जो मैंने पर्सनली बहुत मिस्टेक्स की हैं, बट टेक्निकली तो तुम वहाँ प्लेटफॉर्म पे कवर करोगे. आई एम सेइंग कि अगर तुम पीछे जाते तो तुम क्या उसको बोलते कि भाई तुम किस चीज को बोलता है डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स. मतलब ये मेरी नंबर 1 एडवाइस यही होगी कि भाई नेवर ट्राई टू लुक फॉर शॉर्टकट्स. देयर आर नो शॉर्टकट्स बेसिकली. देखो, ये फ्रीलांसिंग का एक बड़ा खराब परसेप्शन है जो आर्टिफिशियली लोगों ने बनाया हुआ है. लोग कहते हैं कि भाई आपके पास ना बस आप ये कर लें, आप ना इतने पैसे कमा लेंगे, आप ये कर लें, विद इन 2-3 मंथ्स आप इतने पैसे कमा लेंगे. दिस इज रॉन्ग, राइट. इन द टाइम्स ऑफ उमर बिन खत्ताब, may Allah be pleased with him, he went to the masjid and he saw a couple of people sitting there. ठीक है, कुछ जवान लड़के थे बैठे हुए थे, ठीक है ना, और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, बैठ के इबादत कर रहे थे. तो उमर बिन खत्ताब, he was the खलीफा, he was the खालिफ, उन्होंने कहा कि भाई what are you guys doing here, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा we are asking Allah to help us. ठीक है, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई the sky doesn't break and it starts raining. ऐसा नहीं होता कि आसमान खुद ही फट जाए और बारिश होना शुरू हो जाए. ठीक है, जो सुबह परिंदे उठते हैं वो जाके अल्लाह का रिस्क, वो जाके they hunt for you know for their food, the animals. तो तुम लोग यहाँ बैठे रहोगे, this is not how you will earn. So you have to go out. So he started beating them up with a stick. ठीक है, उन्होंने उनको डंडों से मारना शुरू किया कि जाओ निकलो यहाँ से. And they said कि we are the mutawakkilun, right? हम तो अल्लाह पे तवक्कल करके बैठे. So this was wrong. So जो सबसे important चीज है वो ये है कि there are no shortcuts. And the other thing is कि you really have to work really, really hard. I mean, being as a bug bounty hunter, applications are changing very fast, right? नई technologies आ रही हैं, open source के बहुत सारे pieces आ रहे हैं, जैसे FIDO authentication, FIDO के जो authenticators हैं उनको embed किया जा रहा है, open auth है, मुख्तलिफ चीजें हैं जो सिक्योरिटी के जो है ना, समझो कि गेट पे पैरामीटर्स हैं जिसमें लोग जो है ना अपनी वेबसाइट्स के अंदर ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी की चीजें जो लोग अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज एन ऑन गोइंग फील्ड. तुमसे मेरी पहले बात हुई थी, तुमने कहा था कि भाई तुमने कहा था कि मेरा एक फेयर है कि मैं कोई चीज भूल नहीं जाऊं तो मैं पढ़ता रहता. हाँ बिल्कुल, राइट. मेरा ये फियर है, मेरा ये डर है कि मेरा दिमाग कभी काम करना बंद नहीं करना चाहिए. जब तक तुम पढ़ते रहोगे ना, जब तक तुम पढ़ते रहोगे वो काम करता रहेगा. लेकिन अगर तुमने उसका जो फूड है ना वो रीडिंग है, ठीक है ना, वो थिंकिंग है, और अगर तुमने उसको नहीं पढ़ा तो फिर जाहिर सी बात है देन इट विल बिकम रॉटन. मुसलमान जो है ना दुनिया में आया है पढ़ने लिखने के लिए. द फर्स्ट आयत ऑफ द कुरान इज इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड. सो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, व्हेन ही यूज्ड टू सी पीपल, वो उनको बोलते थे कि भाई कि ना पढ़ो लिखो. And there are like more than 40 ahadith that I have gathered around education, right? Education is the key, it's the most important thing. At the time when West के अंदर लोग dark ages में रहते थे, Muslims were very prosperous because they were working, they were the inventors of physics, chemistry, biology, mathematics, you know, Muhammad Musa al-Khwarizmi, like there are so many people जो उन्होंने काम किया. Now it has been reversed. जो ईस्ट है उसमें हालात बहुत खराब हैं, things are very bad. In the West, they have gone up, but then there are some other social issues that they are dealing with right now, right? So
apart from that, the key thing is, as you mentioned, is that you have to keep on studying, you have to keep on working hard. मैं अपना perspective share करता हूँ, then I will allow, then you can go inshallah. I know you have to do some work. Then I will take some questions from the people. मैंने over the years ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम करते हुए देखा. मेरे सामने मैंने NSA के जो operators थे उनके साथ भी काम किया, ठीक है. These were the guys who established Trustwave. Multiple लोगों के साथ काम किया. Ryan Versfield, Andrew, Tom, Dave. I mean, there's so many people that I still remember. They're still on my LinkedIn, right? ये जो लोग थे, they were the pioneers in their field in terms of what they were doing, right? For the civilian sector and for both the government and the private sector. और बहुत सारी बड़ी products बनाई, बड़ी companies बनाई, and over the years मैंने हर department में काम किया. Start किया as a penetration tester, फिर गया मैं GRC के अंदर, फिर मैं गया digital forensics के अंदर, ठीक है. फिर मैं गया इसके बाद दोबारा आया penetration testing के अंदर, ठीक है. फिर web and app के अंदर गया, web and app penetration testing में गया, फिर वापस incident response में गया. फिर उसके बाद जो है जब मुझे सारे avenues मिल गए, then I became like a manager and a director, then a senior director, and then I became a CISO, right? So once you become a CISO, and if you look back, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, जब आप chief information officer या chief information security officer बन जाते हैं, then you manage the whole infrastructure, the whole company. तो फिर आप लोगों को सब अलग-अलग लोग नजर आते हैं, because अगर तुम कहीं किसी बिल्डिंग की टॉप पे जाके खड़े होगे, you can see कि कितनी गाड़ियां हैं ना, कितनी लाल हैं, कितनी ब्लू हैं, ठीक है ना. कौन से लोग हैं जो ब्लू टीमर्स हैं, कौन से हैं जो रेड टीमर्स हैं. You can see the whole landscape of the organization when you go at the top, and this is where you can see, तुम्हें नजर आता है फिर कि भाई कौन क्या मिस्टेक्स कर रहा है और किस तरीके से वो लोग ना आगे बढ़ सकते हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो एक जगह काम करते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती. अगर पेनिट्रेशन टेस्टर बन जाए तो पेनिट्रेशन टेस्टर ही रह जाते, ठीक है. मैंने सब लोगों को देखा कि जो GRC में जाते हैं वो GRC में ही रह जाते हैं, ठीक है. सो ओवर द इयर्स जो मैंने चीजें सीखी, वही चीजें जो है ना फिर मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू की कि भाई किस तरीके से तुम लोग, अगर तुम लोगों के कैरियर में जो है ना बिल्कुल स्टेलनेस आ गई, यानी तुम बिल्कुल एक जगह बैठ गए हो, हाउ कैन यू ब्रेक दैट सीलिंग एंड यू कैन गो फॉरवर्ड, राइट. एंड दिस वाज द रीजन कि मैंने बहुत सारी चीजें डेवलप की, बहुत सारी चीजें खोली, चीजें बनाई, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन ऑल ऑफ दीज एरियाज, राइट. बट ओवर द इयर्स व्हाट आई हैव लर्नड इज यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग. जैसे तुमने कहा ना कि भाई फेयर है, मैं भूल नहीं जाऊं. टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्ट, राइट, एसेंशियली. लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि जो तुमने चीज सीख ली, अगर चीजें चेंज हो रही है ना, तो अपर 10 to 20% लेयर में चेंज हो रही है, बाकी 80 to 90% जो लेयर है ना, इट्स स्टिल द सेम. दे आर स्टिल द सेम कॉन्सेप्ट्स, दे आर स्टिल द सेम मेथोडोलॉजीज, स्टिल द सेम फ्रेमवर्क्स, सारी चीजें वही हैं. अगर कोई चीज चेंज हो रही है, तो जैसे सुबह उठ के मैं कॉफी बनाता हूँ, तो कॉफी मशीन से जब कॉफी बनाता हूँ तो उसकी कॉफी के ऊपर झाग होता है, राइट. उस कॉफी मशीन जो झाग बनाती है ना ऊपर से, जो उसकी फ्रॉथ होती है, इट्स ऑलवेज डिफरेंट, गिव्स यू अ डिफरेंट टेस्ट. सो द फ्रॉथ विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट. इट विल कीप ऑन, उसका अरोमा चेंज होता रहेगा. इफ यू यूज गुड बीन्स, ठीक है, क्रश करके बहुत अच्छी कॉफी बनती है. और अगर पुराने ऐसे खुले हुए पड़े हैं तो इट विल बी वेरी, मतलब इतनी अच्छी कॉफी नहीं बनेगी, एरोमेटिक इतना खुशबू नहीं आती. तो इसी तरीके से, लेकिन बाकी की जो नीचे कॉफी है वो इट स्टिल टेस्ट द सेम. सो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ऑफेंसिव सिक्योरिटी हो गई, डिजिटल फोरेंसिक्स हो गई, थ्रेट हंटिंग हो गई, स्काडा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, क्लाउड इंजीनियरिंग हो गई, डेटा साइंस हो गया. इसमें जो मेन नीचे की चीजें हैं, दे आर स्टिल द सेम. अगर चेंज हो रहा है तो सिर्फ अपर लेयर चेंज हो, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो इसके ऊपर फिर मैं दूसरों से बात करूंगा. But the crux that I have learned is, and I will talk about this separately on the group on the Q&A. But the crux, जो बहुत सबसे important crux है, वो ये है कि अगर किसी को सीखना है, किसी को learn करना है, तो उसके लिए कोई एक ऐसा platform हो कि आप उसके ऊपर बैठकर सारी चीजें सीख सकें. And in my view,
अगर तुमसे कोई पूछे यार कि कितने टाइम पे मैं एक अच्छा जो है ना बग बाउंटी हंटर बन सकता हूँ, अगर उसे सिर्फ बग बाउंटी हंटर बनना, कितना टाइम तुम क्या उसको क्या एस्टिमेट दो? व्हाट इज द एस्टिमेट? 2 years. 2 years. 2 years क्या करो, खुद अपने ऊपर जाके सर्च करे, राइट? मेरा पर्सपेक्टिव पता है क्या है? You can become an excellent bug bounty hunter in 9 to 12 months time. Okay. Right? Well, it won't be at that level कि जिस पे तुम काम कर रहे हो. It will be at a level कि वो मतलब कि intermediate level के bug bounties कर सकेगा, not the expert level. Because expert level में चीजें आपको देर से आती हैं. अगर वो एक बंदा है और वो रोजाना एक labs, एक simulations जो हैं, वो 5-5, 10-10 दफा कर रहा है और बिल्कुल उसको चीजें क्लैरिफाई हो गई कि चीज हो किस तरह रही है. जैसे मैं कल कामरान के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो कामरान ने कहा कि पूरी की एप्लीकेशन बनाना है जिसमें हम सेशन हाईजैकिंग से कहा कि सेशन हाईजैक करके आप किस तरीके से अपना जो वो है प्रिविलेज है वो एडमिन पे ले लें. आप वेबसाइट से रजिस्टर होंगे मगर एज ए यूजर नहीं, एज एन एडमिन रजिस्टर हो जाए, राइट? ठीक है, ये बग बहुत कॉमन है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर, राइट? सेशन हाईजैकिंग के अंदर क्रॉस साइट जो स्क्रिप्टिंग है, टोकन्स हैं, टोकन्स को वो करना, बहुत सारी चीजें. तो एम्फेसिस जो है ना वो बेसिकली अगर बंदा सही तरीके से पढ़े, लेकिन इसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा 2 से 3 घंटे 4 घंटे बैठ के पढ़े, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पढ़े, एडिशनल चीजें पढ़े, तो वो बन सकता है, राइट? लेकिन एट द सेम पाथवे जब वो बनते हुए जा रहा है, ऐसा ना हो कि उस तरफ अपने आप को टनल विजन में देख रहा है कि मुझे सिर्फ यही बनना, नहीं, इसके मुझे सिर्फ बग बाउंटी हंटर ही बनना, नहीं. मेरा मशवरा ये होता है कि भाई अगर तुम जा रहे हो उसमें तो तुम साइबर डिफेंस भी सीखो, सीम भी सीखो, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मॉनिटरिंग कैसे काम करते हैं, नॉक में कैसे काम होता है, रन बुक्स कैसे बनाई जाती हैं, सारी चीजें किस तरह से की जाती हैं, ताकि अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर सको, राइट? जैसे मैंने कल बताया कि अभी मैं इस लड़के का इंटरव्यू रिलीज करूंगा, मेरा स्टूडेंट है, उसकी फर्स्ट जॉब हुई, ही केम फ्रॉम पाकिस्तान टू कैनेडा, ठीक है, उसको आए हुए यहाँ पर 6, 7, 8 महीने हुए. उसकी फर्स्ट जॉब 5 महीने के बाद हुई, 5.5 महीने के बाद, आफ्टर 5.5 months उसकी फर्स्ट जॉब हुई. उसको दे वर पेइंग हिम $45,000 समथिंग, ठीक है. सेकंड जॉब उसकी हुई है 2 महीने के अंदर, PwC, ठीक है, और PwC में उसको दे आर पेइंग हिम बेसिकली $75,000 उसकी एनुअल सैलरी है, प्लस 5,000 बोनस, ठीक है. तो वो भी उसने जब उन्होंने उसको ऑफर दी तो मैंने कहा नहीं, निगोशिएट करो, उनको बोलो कि भाई मुझे ना साइन ऑन बोनस भी दिया जाए, ठीक है. तो द पॉइंट इज के इंडस्ट्री में जैसे IC स्क्वायर रिपोर्ट, IC स्क्वायर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कंसोर्शियम जो है, जब वो रिसर्च करते हैं एनुअली, एज पर देयर रिसर्च देयर आर मोर देन अराउंड 4 million जॉब्स इन साइबर सिक्योरिटी ग्लोबली, ठीक है. और इन जॉब्स के लिए आपको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए कि आप जो है पाकिस्तान में या कहीं पर और बैठकर, इंडिया में या बांग्लादेश में या UK में, USA में, wherever you are, you can work from there and you can work for these companies because physical borders अब ज़्यादा erect हो गए. There are no logical borders anymore. I mean, for hackers there is no logical borders. For remote workers there are no logical borders, right? So on and so forth. So in the last 3 days मेरे 3 स्टूडेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. पहला पाकिस्तान में मोहम्मद नासिर, he was able to secure a job for a Canadian company working from Pakistan. The second one is Nasir Ali in Italy, mashallah. And he, by profession, he was a physicist, Nasir Ali, and now he's working in a cyber security. By the way, as a penetration tester. So he was able to climb up the ladder because he had the analytical mind. फिजिसिस्ट का माइंड था उसका. डॉक्टर अब्दुल सलाम की लैब में काम कर रहा था वहां पर इटली में, और वो एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टर के तौर पे काम कर रहा है, राइट? उसका काम ये होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एप्लीकेशंस आ रही है, उनको QA करके, उनको स्कैन करके, उनको ब्रेक करके, he's a red teamer basically, right? Working with the blue team, उनके साथ काम करेगा, so on and so forth. और तीसरा जो है अहमद अली खान, उसकी भी इसी तरह PwC में जॉब हुई, राइट? So the point is कि मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई अगर मुझसे if I had the time machine ना, और मैं अगर वापस जाऊँ, I would tell myself
कि देखो there are no shortcuts. Even I was looking for shortcuts कि यार shortcuts क्या है कि मैं किस तरीके से ना एग्जाम पास कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये फला सर्टिफिकेशन कर लूँ, फला सर्टिफिकेशन कर लूँ. And through this process, I did more than 45 plus certifications. But they were worthless, except few of them. कुछ को रख के सब बेकार थी. Right. ठीक है, multiple masters कर ली. ठीक है, they were not required. सही है. But when I realized was कि अगर मैं पीछे जाऊं बोलूं कि देखो यार तुम ना multiple experiences लो, multiple hands on चीजें gain करो, standards पे focus करो, frameworks पे focus करो, and that is the key thing कि जिससे तुम आगे निकल सकते हो, right? So that was my take. So कोई और मैसेज तुम देना चाहोगे अपने स्टूडेंट्स को? तुम्हारे काफी सारे स्टूडेंट्स आएंगे तुम्हारे पास. मैसेज फैसल भाई बस यही है कि यार इंसान को इन सीखने के लिए पढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए. कमर्शियल और फाइनेंशियल मोटिव के लिए नहीं करना चाहिए, वो खुद ब खुद ही आता. So as there's what I always say is यार you should always work to learn, not to earn. So that's the code I go by. जज़ाकल्लाह खैर. बहुत बहुत शुक्रिया यार. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को दोबारा मिलेंगे और फिर टॉपिक पे काम करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. तुम जा सकते हो. ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम. सो ये एक पर्सपेक्टिव था. मैं अब रूम खोलूंगा लोगों के सवालात लेने के लिए. शामिर जो है इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और बेसिकली इनका जो काम है वो एज ए चीफ हैकिंग ऑफिसर ऑन गनीमा लैब्स, ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द लैब्स, जो उनकी लैब्स हैं. ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग एंड एडवोकेटिंग आवर स्ट्रेटजी एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. मैं यहाँ से इसका लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. You can go there and you can join the room, but you have to ask one question at a time. एक सवाल का पूछें, ठीक है. This talk will be recorded in Arabic, will be recorded in English and French. हम सबको allow करेंगे ताकि लोग इसमें जाकर उस पे, I mean, if they want to do something, they can do it, and so on and so forth. So we will be putting this in multiple languages ताकि लोगों को आसानी हो. I will share the link of Zoom right now. So when you come in, please be mindful of others and ask question one at a time. Raise your hand, apna haath uthaएं, and I will answer the question. But keep in mind कि सबका ख्याल करना है. Respect others. Keep your mic mute, अपना mic mute रखें, ठीक है. Respectfully बात करें, ठीक है. I'm going to open it right now. So the main talk will be recorded in multiple languages, as I said, and will be available to all to watch. So we will stop here and then Bismillah, sorry, and then the rest of the Q&A session will not be recorded in multiple languages. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.